Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are doing really very well. Myself Shama Parveen and I am your science teacher. Today onwards, you all are going to start your book 6 of science with me. Okay? So, in our today's class of science, first of all, we are going to see our chapter number 1, which name is The Wonderful World of Science. स्टूडेंट्स इस पूरे चैप्टर में आप लोग साइंस के बारे में पढ़ोगे, ठीक है? व्हाई साइंस इज कॉल्ड एज अ वंडरफुल सब्जेक्ट, ये सारी चीजें आज आप इस पूरे चैप्टर के दौरान देखोगे. सो कम विद मी एंड लेट्स सी दिस चैप्टर. As human beings, we have always been inquisitive about our environment. This curiosity drives us to explore, learn, and question the world around us. From a young age, we naturally start to ask questions and discover new things. Students, देखिए, we are human beings, okay, and we are always curious around. We all are always curious about our surrounding environment. ठीक है, आप बचपन से ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं. ये रेड कलर का ही क्यों है, ये राउंड शेप में ही क्यों है, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा. ओके, डिड यू एंजॉय डिस्कवरिंग एंड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड यू ड्यूरिंग द प्रिपरेटरी स्टेज ऑफ स्कूल? Now, as you enter the middle stage, this journey of exploration becomes even more fascinating. Okay, so you all are the student of your class 6, okay? Class 5 तक आप लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी हैं, okay? Now, from your class 6 onwards, the entire scenario will be going to change, okay? See, to guide you on this path, we introduce a new subject, science. Welcome to the exciting universe of science, okay? See, आप लोगों ने साइंस पहले भी पढ़ा है, but now you all are going to see this subject science with a new eye. Okay, let's see. Science is not just a subject. Absolutely true. Okay, science is not just a subject, it's a way of thinking, observing, and doing things to better understand the world we live in and to uncover the secrets of the universe. Okay, science is not only a mere subject, okay, it's about the way of your thinking. आप कैसे सोचते हो, आप किसी भी चीज को कैसे ऑब्जर्व करते हो, okay, and after properly thinking, observing, how you all are able to do different things. Okay, imagine it as embarking on a grand adventure where we ask questions, explore, and seek to understand how everything around us works. Okay, just imagine कि आप जो भी क्वेश्चंस पूछते हो, जो भी क्वेश्चंस आप पूछते हो, उसके आंसर्स आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है? आप कैसे किसी भी चीज को समझोगे कि ये काम कैसे करता है, ठीक है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर दिस एडवेंचर इज क्यूरियोसिटी, which is why this book is actually titled Curiosity. ठीक है? अच्छा, ये सारी चीजों का आंसर only one word, and that is your curiosity. Okay? As we dive deeper into this subject, you will learn how to think critically, observe keenly, and experiment methodically. Together, we will explore the mysteries of nature, the marvels of technology, and the wonders of the universe. This journey will not only satisfy your curiosity, but will also stimulate you to look at the world with new eyes. जैसे जैसे आप काफ़ी ज़्यादा डीपली इस सब्जेक्ट को पढ़ते जाएंगे, okay, then you are going to explore your thinking at a new level, like how you all are going to observe things very deeply. Okay, ये सारी चीज़ें जो ये nature हमारा पूरा है, our nature is full of mysteries. Okay, now you all are able to solve this mystery of our nature. Okay, so let's start this exciting adventure and unravel the many secrets that science had to offer. Okay, so students, इस पूरे book के through, ठीक है, from the starting of this chapter, आप सारा का सारा साइंस जो हमें एडवेंचर प्रोवाइड करते हैं, उसके पीछे के जो सीक्रेट्स हैं, ये सारी चीजें आप देखोगे, ठीक है? See, science is all around us, offering endless chances to explore and discover. See, science का मतलब सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है. आप जहाँ खड़े हो, इवन मैं जहाँ खड़ी हूँ, ठीक है, हमारे आसपास बहुत सारी चीजें जो हैं साइंस से रिलेटेड हैं, ठीक है? Whether we are examining tiny grains of sand or towering mountains, a single blade of grass or an expansive forest, the natural world is full of fascinating secrets waiting to be unraveled. Okay, चाहे आपके माउंटेन्स हो, चाहे प्लेन्स हो, ओके, योर डेजर्ट एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, एवरीथिंग इज अ गॉड गिफ्टेड थिंग. ओके, इन सब के पीछे की जो मिस्ट्री है, जो ये सारी चीज़ें कैसे बनी, ये सब कुछ जानना साइंस ही तो है, ठीक है? आइए देखिए. सो हियर यू कैन सी दिस पिक्चर शोज अ डेजर्ट पिक्चर, ओके, एंड दिस पिक्चर शोज अ कोस्टल एरिया. आप देख सकते हो एक पिक्चर में नो वाटर
and on the another hand side water and water. Okay, now तो देखिए, अच्छा कभी आप लोगों ने रात के टाइम पे ऑफ कोर्स देखा ही है आपने, देखिए नाइट टाइम में आप लोगों ने स्काई को देखा है, कभी आपने ये सोचा है कि रात में ही स्टार्स आपके क्यों चमकते हैं सिर्फ, ठीक है? या फिर कभी आपने देखा है कि एक छोटा सा बेबी फ्लावर जो है वो बर्ड के शेप में होता है, वो कैसे इतना ब्यूटीफुल फ्लावर बन जाता है आगे चल के, ठीक है, जब उसके पेटल्स ओपन होते हैं, ठीक है? दिस सिंपल येट प्रोफाउंड क्वेश्चंस आर जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ द मेनी मिस्ट्रीज साइंस असिस्ट एज अंडरस्टैंड, ठीक है? ये सारे बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं कि क्यों सिर्फ रात में ही आपके स्टार्स चमकते हैं, फ्लावर्स कैसे अपने पेटल्स को ओपन करते हैं, दीज आर रियली जस्ट अ मेयर क्वेश्चन, ओके? लेकिन यही साइंस की फाउंडेशन रखते हैं, यहीं से आपको बहुत सारी मिस्ट्रीज के सॉल्व होने का पाथ ओपन होता है, ठीक है? सो ये देखो, ये इस पिक्चर में क्या दिखाया जा रहा है, एन अंडर वाटर व्यू ऑफ एन ओशन, ठीक है? हमारे जो ओशन बॉडीज है, ये देखो ये इतना ब्यूटीफुल दिखते हैं, ठीक है? एंड नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ आवर गैलेक्सी, ओके? सी द ब्यूटी ऑफ साइंस लाइज इन इट्स प्रेजेंस एवरीवेयर। साइंस की ब्यूटी को अगर आप देखोगे तो साइंस हर जगह है, ठीक है? इवन चाहे ओशन का बिल्कुल डीपेस्ट पार्ट हो, वहां से लेकर आपका आउटर स्पेस, साइंस इज एवरीवेयर, ओके? आप जो डेली एक्टिविटीज करते हो, ठीक है, डेली एक्टिविटीज में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, बेस्ट एग्जाम्पल किचन का एग्जाम्पल, ठीक है? वहां पे अगर आप देखोगे किचन के एग्जाम्पल में कई सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जब खाना पकता है। इवन आप प्ले ग्राउंड में खेलते हो अपना, वहां पे फिजिक्स है, तो क्या है, ये सब साइंस ही तो है आपका, ठीक है? फिर देखिए, साइंस कैन बी कंपेयर टू एन एनॉर्मस नेवर एंडिंग जिगजॉ पजल where each piece illustrates a discovery, an idea और एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द यूनिवर्स, ठीक है? जिगजैग पाथ आपने देखा है, ठीक है? साइंस बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है? आप अगर किसी क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट कर लेते हो, वो दोबारा एक न्यू क्वेश्चन को क्रिएट कर देता है, ठीक है? तो इसी तरीके से हम लोग जो ये हमारा इतना बड़ा यूनिवर्स है, हम उसके बारे में स्टडी करते हैं साइंस के थ्रू, ठीक है? देखिए, with every new discovery another piece of this intricate puzzles fall into place, helping us see the bigger picture of how the world works, ठीक है? अच्छा, ये जो साइंस है, एक क्वेश्चन का आंसर देने के साथ एक न्यू आंसर क्रिएट करता है, ओके? तो इसका मतलब क्या है, ये हमें ये बताता है that how large our world is, okay? But what makes this puzzle so special is that it never truly ends, okay? Yes, this is the very special feature कि ये कभी खत्म नहीं होगा, okay? Each new piece of knowledge opens up more questions and reveals new areas for exploration, okay? Now, as you journey through this book, you will explore fascinating ideas, conduct through provoking experiments and uncover how the concepts you learn can be applied to everyday life. तो जैसे जैसे आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ते जाएंगे इस बुक को, आपको और समझ में आएगा किस तरीके से आप नए नए आइडियाज़ को क्रिएट कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो, ताकि आप सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझ पाओ जो आप अपने डे टू डे लाइफ में अप्लाई करते हो, ठीक है? ओके, तो जब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, एट द एंड ऑफ द डे यू ऑल आर गोइंग टू नोटिस ओनली वन थिंग, दैट एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, ओके? नाउ लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी बाय डाइविंग इनटू सम ऑफ द मोस्ट इनक्रेडिबल पर्सपेक्टिव्स ऑफ आवर वर्ल्ड, ओके? सो स्टूडेंट्स, हम कौन से प्लैनेट में रहते हैं? प्लैनेट अर्थ में, ओके? और प्लैनेट अर्थ क्या है? बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग प्लैनेट है, बहुत स्पेशल प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, ठीक है? व्हाई इट इज कॉल्ड एज फैसिनेटिंग एंड स्पेशल प्लैनेट? बिकॉज दिस प्लैनेट ओनली सपोर्ट्स लाइफ आउट ऑफ एंटायर 8 प्लैनेट्स, ओके? सो अगर आप देखोगे, अर्थ का जो एनवायरमेंट है वो बिल्कुल बैलेंस्ड है फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग थिंग्स, ओके? यहाँ पे हर वो चीज़ दी गई है जहाँ पे लाइफ सर्वाइव कर पाए, ठीक है? Nevertheless, this delicate environment needs protection to continue nurturing life. Okay, it's very true that our earth given has all the life supporting system, but it's our responsibility to make a balance between them, है ना? क्योंकि बैलेंस होगा तो ही तो ये कंटिन्यू हो पाएगा आगे। सो दिस टू पिक्चर शोज ग्रोइंग कैटरपिलर, ये कैटरपिलर से देखिए इनका ग्रोथ, द काफ ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम मदर काउ, ओके? एक पिक्चर में दिखाया जा रहा है जो कैटरपिलर्स हैं वो कैसे ग्रो कर रहे हैं, एंड इन द सेकेंड पिक्चर यू कैन सी द काफ मीन्स द बेबी काउ इज ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम मदर काउ, ओके? सो ये दोनों पिक्चर्स से क्या समझ में आया? इन दोनों पिक्चर से ये समझ में आया कि लाइफ कैसे आपकी कंटिन्यूअसली ग्रो करती है, ठीक है? आइए देखिए, ओके? अगर आप प्लैनेट अर्थ पे देखोगे तो प्लैनेट अर्थ पे क्या सिर्फ ह्यूमन बींग्स हैं? एब्सोल्युटली नॉट। वी कैन सी द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ इज प्रेजेंट ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, ओके? चाहे वो आपके टॉल ट्रीज हो, चाहे फिर वो आपके टाइनी इंसेक्ट्स हो, ईच एंड एवरी लिविंग थिंग
लिव ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, ठीक है। जैसे कि हमारे जो प्लांट्स है वो कहाँ से ग्रो करते हैं, मैक्सिमम प्लांट्स आपके सीड से ग्रो करते हैं। सीड इतने छोटे से होते हैं, ठीक है, उससे इतना बड़ा प्लांट कैसे आ सकता है। या फिर एक कैटरपिलर, ये देखो ये जो कैटरपिलर है ये अभी कैटरपिलर है, बट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दिस कैटरपिलर इज गोइंग टू कन्वर्ट देमसेल्फ इनटू अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। हाउ इज दिस पॉसिबल, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है, ये सारी की सारी चीजें लाइफ है हमारी, और लाइफ क्या है, लाइफ इज अ साइंस, ओके। तो देखो ये सब ना एक बस बहुत ही छोटे से एग्जाम्पल्स हैं हमारे लाइफ, ये सारी चीजें बहुत ही छोटी सी एग्जाम्पल हैं हमारे वंडरफुल लाइफ का, ठीक है। चलो इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच दिस प्लैनेट अर्थ हैव, वाटर, ठीक है। तो देखिए water is really very important substance for the survival of living things, which is only available on our planet earth. That's why our planet earth is called as blue planet also, okay। So आप देखोगे कि planet earth पे सबसे बड़ा सोर्स क्या है वाटर का, रेनफॉल। बट हैव यू एवर थॉट दैट ये पानी बनते कहाँ से, मतलब ये टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर्स हैं, ये आते कहाँ से हैं, ठीक है। चलिए इसका भी आंसर साइंस ही है, ठीक है। अब देखो, और इसका आंसर साइंस कैसे दे रहा है, वाटर साइकिल के फॉर्म में। आप सभी जानते हैं वाटर साइकिल क्या है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाटर साइकिल। तो देखिए दिस पिक्चर शोज द वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल में क्या होता है, गर्मियों के टाइम में स्पेसिफिकली, ठीक है, हीट की वजह से, हीट हमें कहाँ से मिलता है, सन, ठीक है। तो हीट की वजह से आपके ओशन, रिवर और लेक्स क्या करते हैं, ये अपने पानी को इवापोरेशन मतलब इवापोरेट करना शुरू करते हैं, ठीक है। और यही वाटर वेपर जब ऊपर जाता है तो क्या करता है, वो कूल डाउन हो जाता है। कूल डाउन होने के बाद इट फॉर्म क्लाउड्स, ओके। देन आफ्टर फॉर्मिंग दिस क्लाउड्स टाइनी ड्रॉपलेट्स grow inside them, and when they become very heavy, okay, they fell down again in the form of rainfall, okay। ये जो पूरा प्रोसेस है यही आपका वाटर साइकिल। इसमें आपको इवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, ये 3 प्रोसेसेस कैरी ऑन होते हुए दिखते हैं, ठीक है। और इसी वाटर साइकिल की वजह से हमारे पूरे अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, साथ ही साथ हमारा पूरा प्लैनेट अर्थ का एनवायरनमेंट भी रहता है बना हुआ, ठीक है। इसके अलावा अगर आप अर्थ के बारे में और डीपली जाओगे, ठीक है, हमारे प्लैनेट अर्थ पे सिर्फ वाटर ही नहीं है, अपार्ट फ्रॉम वाटर वी हैव फूड, okay, we have food, okay, which also contribute a lot of efforts in sustaining the life on this planet earth, ठीक है। तो आप देखोगे कि कैसे ये फूड, वाटर, ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। इनमें से अगर कोई एक चीज गायब हुआ तो पूरी लाइफ गायब हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए हम खाना क्यों खाते हैं, फॉर आवर प्रॉपर ग्रोथ, ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर आवर सर्वाइवल, हमें खाना चाहिए। चाहे वो आपके एनिमल्स हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, एवरीथिंग, एवरी लिविंग थिंग्स रिक्वायर फूड फॉर देयर ओन सर्वाइवल, ठीक है। ओके, प्लांट्स को कहाँ से खाना मिलता है, फ्रॉम देयर सॉइल। सॉइल से वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, वाटर लेते हैं, वो ट्रांसपोर्ट करते हैं लीव्स में, ठीक है। फिर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू खाना बनता है लीव्स का, लीव्स बनाते हैं खाना, ठीक है। तो इस तरीके से देखोगे आप तो पूरा का पूरा हमारा जो लाइफ साइकिल है वर्ल्ड का कंटिन्यूअस चलता रहता है, ठीक है। अब देखिए द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एसेंशियल टू आवर ओन एक्सिस्टेंस इज क्लोजली टाइड टू द एनवायरनमेंट वी शेयर। प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में सिर्फ लाइफ का सर्वाइवल इंटरलिंक नहीं है, ये दोनों हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक थोड़ा सा भी इम्बैलेंस फॉर्म में आए, हमारी खुद का लाइफ, हमारा जो खुद का एग्जिस्टेंस है वो भी डेंजरस सिचुएशन में पड़ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हमारा जो ये पूरा वर्ल्ड है, ठीक है, यहाँ पे ये बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग भी है लेकिन कॉम्प्लेक्स भी है, ठीक है। इन सारे कनेक्शंस को समझने के लिए हमें फिर से बहुत ही ज्यादा डीपली अपने वर्ल्ड को स्टडी करना पड़ेगा ताकि हम अपने वर्ल्ड को अपकमिंग फ्यूचर के लिए हम बचा सके, ठीक है। चलो इसके अलावा अगर आप देखोगे, ये दूसरा टॉपिक है आपका, देखिए अगर आप देखोगे वहीं दूसरी तरफ वाटर, वाटर क्या है, लिक्विड है आपका, ठीक है। वाटर क्या है, लिक्विड है, लेकिन व्हेन दिस वाटर फ्रीजेस इट कन्वर्टेड देमसेल्फ इनटू सॉलिड दैट इज कॉल्ड एज आइस, ओके। ये आइस जब कूल डाउन होते हैं तो क्या करते हैं, देखो ये स्टीम में कन्वर्ट होते हैं। आप इसको जब हीट करते हो, मतलब एक तरफ वो फ्रीज होते हैं तो वो बन जाते हैं आइस में, लेकिन जब हीट करते हो आप तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखिए गर्मियों के टाइम पे, हॉट समर डेज में आपको कौन सा पानी, गर्मियों के टाइम पे हम सभी लोग कूल वाटर पीना बहुत एंजॉय करते हैं, ठीक है। और वही सर्दियों में वी टेक वार्म शावर, क्यों, हमारे एनवायरनमेंट की वजह से। क्या ठंडियों में ठंडे पानी से नहाना
पसंद करोगे? बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो देखो ये सारे जो हमारी डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, ये सब किसकी वजह से होता है? टेम्परेचर की वजह से। और टेम्परेचर किससे जुड़ा हुआ है? साइंस से आपका जुड़ा हुआ है, ठीक है। यही टेम्परेचर हमें हॉट और कोल्ड, ये जो दो वर्ड्स हैं, इसका प्रॉपर मतलब हमें समझाता है, ठीक है। तो देखो टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज एंड इट प्ले अ वाइटल रोल इन आवर डेली लाइफ। तो टेम्परेचर हमें क्या बताते हैं? कोई चीज़ कितना ज़्यादा गर्म है, कोई चीज़ कितना ठंडा है, ठीक है। और टेम्परेचर हम ह्यूमंस के लिए हमारी डेली लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखो कि हमारी बॉडी का भी अपना एक स्टेबल टेम्परेचर होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है, एक्सटर्नल ऑर्गन्स है, ये सब कुछ एफिशिएंटली काम करते हैं, तो हम सर्वाइव कर पा रहे हैं, ठीक है ना। With every day we interact with a variety of objects made of different materials. आप अपने डे टू डे लाइफ का अगर आप एग्जांपल लोगे, हर दिन आप कुछ ना कुछ ऐसी चीजें यूज करते हो अपने लाइफ में जो अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन टेक पेपर, मेटल, प्लास्टिक, रबर एंड ग्लास। क्या ये सब एक ही चीज के बने हैं? बिल्कुल नहीं, ये सब अलग अलग तरीके से बने हुए हैं, इन सब की प्रॉपर्टीज अलग है। बहुत ज्यादा हार्ड होती हैं तो कुछ बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं, कोई बहुत ज्यादा शाइनी होती हैं तो कोई बहुत ज्यादा डल होती हैं, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, ठीक है। कुछ उसमें से नेचुरल है जैसे कि वुड और कॉटन है, कुछ आपके मैन मेड है लाइक प्लास्टिक, ओके। इवन साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड मेथड्स टू सेपरेट एंड आइडेंटिफाई दिस मटेरियल्स बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, ओके। Our scientists developed methods how they are going to separate this natural as well as this man-made things, okay? और इसके लिए क्या चाहिए? फिजिकल प्रॉपर्टीज चाहिए, ठीक है। इसके लिए स्टूडेंट्स क्या चाहिए एट द एंड ऑफ द डे? साइंस। साइंस ही यहाँ पे ये रोल प्ले करता है इनको पहचानने में, ठीक है। आगे देखिए, इसके अलावा अगर आप देखोगे टाइनी लीव से, यानी छोटी सी बेबी लीव से लेकर जो हमारे वास्ट स्टार्स हैं, ठीक है, ये सब के सब किससे फुल ऑन है? क्वेश्चंस, ठीक है। किससे भरे पड़े हैं? ये सारे के सारे क्वेश्चन से भरे पड़े हैं, जो कि वेट कर रहे हैं कि आप हमारा आंसर दीजिए, ठीक है। मीन्स वो ये वेट कर रहे हैं कि ह्यूमंस उनकी मिस्ट्री को सॉल्व करें, ठीक है। चलिए, whether you are learning about how things move or the structure of a leaf, we hope that every chapter inspires you to ask more questions. देखिए स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये आपके लिए वार्म अप चैप्टर है, आपके आने वाले फर्दर चैप्टर्स के लिए। यहाँ पे जो इतनी सारी चीजें हमने पढ़ी है वो आप अलग अलग से एज एन सेपरेट टॉपिक यू ऑल आर गोइंग टू सी इन डिफरेंट चैप्टर्स, ओके। सो इट्स अ वार्म अप टाइप ऑफ चैप्टर फॉर यू ऑल, ओके, बिकॉज दिस चैप्टर इज गोइंग टू इंस्पायर यू to ask more and more questions, okay. See, you have already been practicing science even in simple situations like when your pen stops writing. आपका पेन जब लिखना बंद कर देता है, कैसे बंद करता है? उसकी जो इंक खत्म हो जाती है, ठीक है। तो अगर आपको ये पता नहीं है, फर्स्ट टाइम पेंसिल लिख रहे हो एंड ऑल ऑफ सडन योर पेन स्टॉप्स राइटिंग, ओके, immediately a question arises in your mind that why my pen stopped writing, okay, and the simple answer is obviously science, okay. See, the first thing, ओके, तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या पूछोगे? Why did my pen stop working? आप यही पूछोगे, ठीक है। तो देखो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर सिंपल सा यही है कि उसकी इंक खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? अगर आप फाउंटेन पेन यूज कर रहे हो तो आप इंक को रिफिल करोगे। इफ यू आर यूजिंग योर बॉल पॉइंट पेन, यू आर गोइंग टू यूज अ न्यू पेन इंस्टेड ऑफ देम, ओके, और यू कैन जस्ट रिप्लेस इट्स रिफिल, ओके। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे देखो, to test this new idea you might try scribbling on a piece of paper to see if it starts writing again, okay. कभी कभी क्या होता है, हमारा पेन इंक खत्म नहीं हुआ है तब भी क्या होता है, स्टॉप कर जाता है लिखने के लिए। तो आप दोबारा उसको ट्राई करोगे, जस्ट एक बार देखोगे कहीं फिर से हो सकता है लिखना शुरू हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देखोगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हियर वन एक्टिविटी इज गिवन, लेट अस थिंक एंड राइट, ओके। राइट अबाउट अ सिमिलर प्रॉब्लम दैट यू ट्राई टू सॉल्व। ये जो क्वेश्चन अभी आपने पढ़ा है पेन से रिलेटेड, मतलब जो देखा है, इसके बारे में आपको ये बताना है कि आपने अपनी लाइफ में क्या सिमिलर कुछ ऐसा प्रॉब्लम देखा है। जैसे पेन तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, इसके अलावा, ठीक है। सेकेंड वन, व्हाट स्टेप्स डिड यू टेक, ओके। आपने प्रॉब्लम तो फेस कर लिया, लेकिन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने कौन कौन से स्टेप्स लिए? यू आर गोइंग टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस देन, ओके। अब ये देखिए यहाँ पे, the scientific method involves asking a question. If we are talking about science, it means what? We are talking about asking a questions, okay? Then forming a hypothesis. Now, what is the meaning of hypothesis? Your guess power, okay? Hypothesis means simply your guess power, guessing power, okay? इसके बाद देखो, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पूछोगे, क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप गेस करोगे, ठीक है, कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और उसके बाद आप क्या करोगे? आपने जो भी हाइपोथेसिस फॉर्म किया है आप उसको टेस्ट करोगे कि क्या ये सही है, ठीक है। और टेस्ट करने के बाद आप आंसर लाओगे, ठीक है।
and you are going to draw the outcomes of your answers in this following steps. First step is, what is your hypothesis when your conclusions? Second one, how do you test a hypothesis? Method. In fact, anyone who follows this approach insecting like a scientist. For example, think about someone cooking food. If the dal, lentils spill out of the cooker, they might wonder why. They could ask, was there too much water, and test. Okay. So students, यहाँ पे आपका जो hypothesis है, आप पहले क्वेश्चन फॉर्म करोगे, then you are going to use your guessing power, then you are going to test your hypothesis, and at the end of the day you are going to draw a outcome. तो कैसे करोगे? मान लीजिए आप अपने हाइपोथेसिस को ड्रॉ करने के लिए, आप गेस करने के लिए, आप एक बेस्ट एग्जांपल है, दाल सबके घर में बनती है, ठीक है। इमेजिन कीजिए किचन का एग्जांपल है, ठीक है। देखिए, अगर दाल प्रेशर कुकर से बाहर आ जाता है, जब वो पानी के फॉर्म में, ठीक है, जब वो बाहर निकलता है, तो जस्ट इमेजिन कि जिस पर्सन ने उसको बनाया है, क्या वो खुद से ये क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या मैंने ज्यादा पानी डाल दिया इसलिए इतना पानी बाहर निकल गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस का एग्जाम्पल ले सकते हो अपने हाइपोथेसिस को फॉर्म करने के लिए, क्योंकि ये सब आपको हेल्प करेंगे आपका आंसर फाइंड आउट करने में, ठीक है। चलिए, इन एवरीडे लाइफ, वेदर वी आर कुकिंग, fixing something, or just trying to understand how things work, we all are practicing science. ओके, चाहे आप कुकिंग कीजिए, चाहे किसी भी चीज को फिक्स कीजिए, या किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर फाइंड आउट कीजिए, everything lies only in one word, and that word is science. Okay, now activity number 2, do with yourself. Then the second one, the process of asking question. Okay, the process of asking question, testing ideas, and figuring out solutions is what makes us all scientists on our way. Students, आप चाहे क्वेश्चंस पूछो, अपने आइडियाज को टेस्ट करो, या फिर आप आंसर फाइंड आउट करो, ये सब कुछ आपको अपने अपने वे में साइंटिस्ट ही बनाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल थिंक अबाउट समवन cooking food. If the dal lentils spill out of the cooker, they might wonder why. Okay, for example, अभी आपने जो ऊपर देखा है कि अगर जो lentils हैं कुकर से वो spill out हो जाए, तो वो सोचेंगे ऐसा क्यों हुआ, कहीं मैंने ज्यादा पानी तो नहीं डाल दिया। ओके, तो यही कहेंगे कहीं मैंने ज्यादा पानी तो नहीं डाला, एंड टेस्ट द हाइपोथेसिस बाय एडजस्टिंग द वाटर नेक्स्ट टाइम। तो वो क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि नेक्स्ट टाइम से ये इतना पानी नहीं डालेंगे। यही आंसर होगा, जो पहली बार इतना पानी निकल गया तो नेक्स्ट टाइम क्या है कि मैं इतना पानी नहीं डालूंगी, यही होगा आंसर, ठीक है। चलिए, इसके अलावा आप द सेकेंड एग्जाम्पल यू कैन टेक इज योर बाइसाइकिल रिपेयर। ओके, आप अपने बाइसाइकिल को रिपेयर कराने जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है देखिए, और कंसिडर अ बाइसाइकिल रिपेयर पर्सन हु ट्राइज टू फिगर आउट व्हाई अ टायर इज फ्लैट। दे माइट आस्क वेयर डिड द एयर लीक आउट, एंड देन चेक फॉर होल्स और क्रैक्स। आपका जो साइकिल है, अगर वो पंचर हो गया, तो आप उसको सही करवाने लेके जाओगे रिपेयरिंग शॉप में, तो जो रिपेयरिंग पर्सन है वो आपसे यही पूछेगा कैसे पंचर हुआ, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, वो उस पूरे टायर में होल्स के लिए, क्रैक्स के लिए वो चेक करेगा कहीं यहीं से तो हवा बाहर नहीं निकला। Similarly, when an electrician finds that a light bulb isn't working, they may ask, is the bulb broken or is there an issue with the switch? Similarly, अगर आपके घर का कोई लाइट बल्ब काम नहीं कर रहा है, आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हो, तो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि जैसे स्विच के साथ कोई इशू है, या फिर आपका बल्ब टूटा हुआ है, बिकॉज दिस आर द रीजन why your light bulb is not working. By testing these questions and looking for answers, you are using the scientific technique, and by giving the answer of these questions, you are using your scientific technique. You can see science is involved in each and every area. Example देखो, bicycle repair person who tries to figure out why a tire is flat. Now the second one, dal is spilling out of cooker. Okay. So students, in this way we have finished our chapter number 1. Through this chapter number 1, we have prepared ourselves for the upcoming chapters. Okay, in this entire chapter we have seen why science is called as a really wonderful subject. Okay, so students, read this chapter very well and complete all your external exercises. Okay, now I'm taking leave. I'm going to meet with you all in my next class of science for a new chapter. Till then, take very good care of yourself. Bye.